लास्ट टैग का होता है. I mean, even though nobody is taking the money, but किसी को वहाँ बैठना ही पड़ता है. तो you know, look at it. Going to evolve into reliability का आपको लगता है कि is one thing that needs to be looked at, correct? Absolutely. It cannot be 100% machine dependent. It can maybe 70%, but फिर भी किसी को somebody have to monitor. Like we are thinking कि DM रहेगा नहीं रहेगा, कोड लिख देगा, but जो वो लिख के दे रहा है उसको टेस्ट करना पड़ेगा, and maybe थोड़ा सा फिर भी चेंज करके देखना पड़ेगा, something like that. Very nice, good point. And sir, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि AI हमारे को प्रिपरेशन में तो हेल्प करता है, पर कोर काम तो हमें ही करना पड़ेगा. So very good point, Ankit. So Ankit, पहली बात तो हाय, good to see you after so long. Sir. And yes, बिल्कुल करेक्ट कि अभी आप कह रहे हो कि AI हमको रिस्पॉन्ड तो करता है, बट काम तो हमको खुद करना पड़ेगा. Let's keep this thought for a while with us. इसके अलावा और किसी को इसके अलावा कुछ ऐड करना है? One more thing, sir. इसमें हमारे को आपकी हेल्प चाहिए होगी, because this is so wide and confusing. इसमें हमें किस रास्ते पे चलना है, फोकस हमारा लूज ना हो. उसके लिए हमारे को how to use AI sensibly. Correct. It's very important. It's a vast subject, and इसके अंदर it's very easy to get carried away with this कि भाई ये कर लेता हूँ या वो कर लेता हूँ. मान्यता सर, आप हमें कुछ ऐसा टूल देंगे क्या जो हमको रिप्लेस कर देगा? ऐसा कुछ है क्या? आज बता दो आप. देखो, होना तो यही चाहिए कि आप बहामास में बैठे हो और यहाँ पे आपका AI काम कर रहा हो. सब कुछ AI करने लग जाए. आज हमें AI बहामास में बैठेगा. FAQ and help slip उसमें लगा दो. वही repeated question ना आए. It can answer the questions whether I am in the office or not, and that's how I think. चैट बेस से सर ने करा दिया था पिछले बार. चैट बेस से सर हमने हमारे सपोर्ट टीम को पूरा चैट बेस पे ले लिया. हाँ, great, it's working for you. हाँ, सेविंग क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट? 80% 90% क्वेश्चन सेम ही आते. पूरा FAQ को उसमें लोड कर दिया. 2-2.5 मिनट में सेटअप हो गया और फिर ट्रेन कर दिया 1 घंटे में. और they were on chat. Right. Very good, very nice. Good. अच्छा, किसी को और कुछ यूनिक कुछ ऐड करना है जो कि which is apart from what we have discussed till now? Sir, I would like to share. Yes, I am Ankur. Yes, अभी भी usage of Chat GPT और AI is still very less. हुआ बहुत बड़ा बन गया है, लेकिन अभी भी यूजेज करने वाले एक्चुअली में कितने लोग हैं? कोई भी नहीं. परसेंटेज. तो अभी still we got lot of opportunity to actually generate business from the tools which are linked with Chat GPT, AI tools. अभी still lot of opportunity. जब तक लोगों को समझ में आएगा तब तक तो अपने को बैंड पे जा देनी है. Correct. And that is why we are here. Yes, correct. Absolutely. So used it or other thing like also we have SAP implemented. तो पहले कोई भी problems आती थी consultant से तो कहता है ये possible नहीं है इसमें. तो I simply Chat GPT ये problem है, इसका कोई solution है. तो it has given me all the step by step. ये सब चीजें यहाँ से ऐसे आप करोगे तो it is possible. ERP. Same way I was making some sheet on Excel. So there was an error coming, so I just paste that thing and find out what is the error. So it has given me complete thing. This is the error and this is the corrected one. So that way also it is helping, not just the content wise, like social media posts I wanted to create. So it created so many options, 2-3 options. You can post it on relevant things. Correct. प्रोडक्टिविटी बहुत ऊपर चले गई. मतलब ना अब ऐसा लगता है कि in a sort of way कि जैसे I've been using this since Christmas holidays में last year मैंने शुरू किया था यूज करना. तो 6 महीनों में ना प्रोडक्टिविटी कई चीजों में इतनी ऊपर चले गई क्योंकि कुछ एरियाज में ना लोग नहीं होते थे. एज अ SME ना सर्टेन कैलिबर के लोग नहीं हुआ करते थे. अब वो वाला गैप बहुत इजीली फिल हो जाता है कि जहां पर अगर मुझे किसी एरिया में नहीं पता, जैसे BI टूल्स के ऊपर अटक रहा था मैं थोड़ा सा, तो इतना सारा ETL से लेके ये वो फलाना ठिकाना सारा का सारा ना discover कर लिया by having a conversation over there. So and what it has helped me realize is कि यार productivity ना मतलब almost 5x 6x मतलब 5x 10x हो सकती है अपनी खुद की. अब almost ऐसा लगता है कि यार इस सारे उसमें जहां पे पहले क्या लग रहा था, पहली सोच क्या थी कि लोगों को enable करो AI से, राइट? अब मुझे पता नहीं क्यों उल्टा लगने लग गया है 6 महीने बाद
कि जहां जहां पे एआई यूज कर सकते हैं एआई, और जहां पे नहीं कर पा रहा एआई वहां पे लोगों को प्लग इन कर। तो मतलब ना उल्टा हो गया, सोच उल्टी हो गई 6 महीने। वेरी गुड, वेरी वेल पुट, वेरी नाइस। सो ये इसको भी हम थोड़ा बेसिक बता दें, अभी हम लोग इन चीजों से दूर हैं, यहाँ से बिल्कुल एग्जैक्टली। तो मुझे मैं यही क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि अगर चैट जीपीटी आज तक यूज नहीं किया तो एक बार जरा चैट बॉक्स के अंदर यस लिख दो। अगर चैट जीपीटी यूज नहीं किया कभी आपने, चैट जीपीटी क्या होता है अगर यूज नहीं किया तो चैट बॉक्स के अंदर यस लिख दो एक बार। अगर एक बार भी चैट जीपीटी कभी यूज नहीं किया। ओके, सो आई कैन सी कि बहुत सारे लोगों ने चैट जीपीटी को अब तक यूज भी नहीं किया है। ग्रेट 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 ग्रेट। वैसे तो नॉट ग्रेट, बट नहीं किया तो कोई बात नहीं। टुडे वी आर हियर, टुडे वील अंडरस्टैंड इट कि ये क्या चीजें हैं, कैसे होती हैं, क्या होती हैं, ताकि ये ना हो कि अगले 1 साल बाद जब लोग सब कुछ इम्प्लीमेंट कर रहे हो तब भी हम वहीं पे हों जहाँ पे हम आज हैं, कि हम लोगों को नहीं पता कि सब क्या हो रहा है। राइट, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये है क्या चीज चैट जीपीटी। देखो अभी ना हम लोग को पहले ये समझना होगा। तो गाइस लेट्स फोकस ऑन माय स्क्रीन फर्स्ट। मैं एक बार ना सबके माइक्स को फिलहाल के लिए म्यूट कर रहा हूँ ताकि बीच में डिस्टर्बेंस ना हो, बट यू कैन यूज द चैट बॉक्स टू कम्युनिकेट विद मी। बट लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक्स कि है क्या, मतलब कि एआई की जो हम बातें कर रहे हैं ये सब क्या बातें हो रही है कि ईमेल लिख दी, वो लिख दी, ये सब क्या हो रहा है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। देखो पहले तो जो हम एआई के बारे में बात करते थे ना, अच्छा आप लोग रेडी हो ना आप सुनने के लिए कि ये सब के बारे में मैं ना एक बार विस्तार में बताने वाला हूँ। सो आर यू गाइस रेडी टू अंडरस्टैंड दिस कि व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है और हम कैसे यूज करें इसको। ग्रेट। देखो क्या होता था कि अगर हम बात करें बिफोर 2022, तो जब एआई की बात होती थी ना तो हमारे को ज्यादातर कुछ ऐसे यूज केसेस समझ में आते थे इसके कि ट्रेंड्स प्रिडिक्ट कर लिए एआई ने। एआई कैन बी यूज्ड फॉर प्रिडिक्टिंग ट्रेंड्स, प्रिडिक्टिंग कस्टमर बिहेवियर, कि कस्टमर का बिहेवियर क्या है। हम लोगों ने वो नेटफ्लिक्स के ऊपर वो देखी होगी सोशल डिलेमा और वो सब, जिसके अंदर वो बताते हैं कि भाई कस्टमर का जो बिहेवियर है वो एआई जो है उसको अंडरस्टैंड करता है, प्रिडिक्ट करता है और उसके हिसाब से उनको कंटेंट दिखाता है। तो ऐसी चीजें हमको पहले पता थी, राइट। सो इसके अलावा हमको ये पता था कि कुछ कंप्यूटर विजन नाम की भी कुछ चीज होती है कि भाई कुछ लोगों ने सुना हुआ होगा कि कैमरा से डिटेक्ट हो गया कि लाइन में फॉल्ट्स कहाँ पे हैं। कुछ क्लासिफिकेशन के जॉब्स हो गए, जैसे कि हमने देखा कि भाई कस्टमर का सेंटिमेंट एनालिसिस हो रहा है, एआई को यूज करके सेंटिमेंट को एनालाइज कर पा रहे हैं। ये सब हमने एआई के यूज केसेस पहले समझे थे। लेकिन इन सब चीजों के अंदर एक चीज कॉमन थी, व्हिच वाज कि you need lots of data. Lots of data was required and lots of expertise was required. Expertise कह लो, resources कह लो, correct employees कह लो, जो मर्जी कह लो उसको। बट इसके लिए बैरियर टू एंट्री एक बहुत बड़ा था। हमारे पास नहीं तो डेटा, हमारे पास नहीं था, एक्सपर्टीज नहीं थी, रिसोर्सेज नहीं थे, एम्प्लॉइज नहीं थे, एफर्ट्स, टाइम, बहुत कुछ था जिसकी वजह से हम इसके अंदर नहीं एंटर कर पाए। ये चीज समझ में आ रही है। पहले आप लोगों ने भी ऐसा कुछ सुना होगा लाइफ में कि 2022 से पहले जब हम बात करते थे एआई की, तो कुछ ही प्रिडिक्ट कर लिया, ट्रेंड प्रिडिक्ट कर लिया, फोटो से कुछ इंफॉर्मेशन निकाल ली, जैसे टेस्ला वगैरह चल रही है तो ऑटोमेटिक चल रही है, फोटो कैमरा अंदर लगा के कस्टमर का बिहेवियर हमने एनालाइज कर लिया कि भाई क्या इसने कमेंट डाला है तो वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, या फिर इसने अगर ये वाली पोस्ट के ऊपर क्लिक किया तो उसको अगली पोस्ट कौन सी दिखाएं, इसने इस प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो दूसरा कौन सा क्रॉस सेल करे इसके साथ में। तो ये सब चीजें जो है हम सुनते थे। इज दैट करेक्ट? कुछ लोग सुनते थे ये चीजें, कुछ लोग नहीं भी सुनते थे, बट जो लोग सुनते थे यूजुअली यही सुनने में आता था। So बेसिकली एआई की जब हम बात करते हैं तो एआई बेसिकली क्या है कि इट्स लाइक ये कंप्यूटराइज्ड ब्रेन बोल लो इसको, कंप्यूटर ब्रेन जो कि चीजें लर्न कर सकता है, राइट।
डिसीजंस ले सकता है एंड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, राइट। फिर अगर हमको फिर कुछ लोगों ने बोला कि कुछ मशीन लर्निंग करके भी कुछ होता है, एआई तो हमने सुना था, कुछ लोगों ने बोला कि मशीन लर्निंग करके भी कुछ होता है। तो 2022 से पहले अगर हम बात करें, जब ये सब सुनने में आता था एमएल हो गया था, तो बेसिकली क्या होता था, एमएल से हमको एक दिमाग में कॉन्टेक्स्ट कभी क्रिएट नहीं कर पाते थे मोस्ट ऑफ अस। बट होता क्या है इसमें एमएल के अंदर कि ये जो है इट कैन इम्प्रूव फ्रॉम एक्सपीरियंस। जैसे कि एक बच्चे को साइकिल चलाना सिखाते हैं और वो धीरे धीरे और एक्सपर्ट होता जाता है साइकिल चलाने में, तो वैसे ही एआई एमएल जो है, एमएल इज अ टेक्नोलॉजी व्हिच कैन इम्प्रूव फ्रॉम एक्सपीरियंस। मैं बहुत सिंपल भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत सिंपल टर्म्स में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एमएल इज अ पार्ट ऑफ एआई जो कि इम्प्रूव करता है एक्सपीरियंस से, राइट। और फिर कुछ लोगों ने हो सकता है ये भी सुना हो डीप लर्निंग के बारे में। डीप लर्निंग नाम की भी कोई चीज है कि भाई डीप लर्निंग से क्या होता है कि इट इज इंस्पायर्ड बाय ह्यूमंस का जो सोचने का तरीका होता है, डीप लर्निंग उसको कहते हैं, राइट। तो जैसे कि मतलब सिंपल मैथ्स सॉल्व करना वर्सेस कॉम्प्लेक्स कैलकुलस सॉल्व करना, तो वो जो डिफरेंस है वो डीप लर्निंग और एआई एमएल वगैरह इन सब के बीच में होता था। तो देखो, मैं कोशिश कर रहा हूं कि हम एक पिक्चर क्रिएट करें कि 2022 से पहले क्या था। इनफैक्ट 2023 ही बोलूंगा तो वो भी ज्यादा सही रहेगा। 2022 से पहले भी शायद नवंबर में आया था, या कब आया था, अक्टूबर में आया था, अक्टूबर या नवंबर में आया था चैट जीपीटी, राइट। तो अब ना जरा एक बार ये समझते हैं कि चैट जीपीटी क्या है, ये चैट जीपीटी क्या चीज है। लेट्स अंडरस्टैंड। ये पहले ये सारी चीजें थी जो हमको सुनने में आती थी कि एआई है, यहाँ पे प्रेडिक्ट कर लेंगे ट्रेंड, ये कर लेंगे, लेकिन इसके लिए हमारे पास में ये बैरियर था। लेट्स नाउ अंडरस्टैंड कि चैट जीपीटी क्या है। कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है कि पहले एआई के अंदर वो चीजें थी जिसके लिए हमको डेटा चाहिए होता था, रिसोर्सेज चाहिए होते थे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी, और वो प्रेडिक्शंस कर सकता था, क्लासिफिकेशंस कर सकता था, सिंपल टास्क कर सकता था। ऑल्दो नॉट सिंपल, बट जब स्केल के ऊपर करते थे तो वो सिंपल टास्क करने का बहुत फायदा होता था। अब जरा चैट जीपीटी के बारे में समझते हैं कि चैट जीपीटी क्या है। ओके, देखो चैट जीपीटी कुछ नहीं है। चैट जीपीटी बड़ी सिंपल सी बात है। अगर सिंपल लेमैन टर्म्स के अंदर बोलो तो कि आप कोई टेक्स्ट डालते हो और वो उसको एक्सपैंड करता है, वो और ज्यादा टेक्स्ट जनरेट करता है, जो कि इसके बेसिस के ऊपर जो आपने इसको टेक्स्ट डाला उसको और ज्यादा एक्सपैंड करता है। बिल्कुल सिंपल टर्म्स में अगर बोले तो आपने कुछ टेक्स्ट लिखा, उसको एक्सपैंड करेगा। जैसे आपने नोटिस किया होगा, आप जब अपने मोबाइल के ऊपर टाइप कर रहे होते हो तो कीबोर्ड पे सजेशंस आ रहे होते हैं, करा है ना नोटिस सबने कि वो कुछ हम लिख रहे होते हैं तो ऊपर वो नेक्स्ट वर्ड सजेस्ट कर रहा होता है कि नेक्स्ट वर्ड क्या लिखना है मेरे को, राइट। तो वो उसको अगर आप क्लिक करते रहते हो तो कुछ भी गार्बेज जनरेट हो जाता है उसके अंदर, मतलब ऐसा कुछ मीनिंगफुल चीज नहीं जनरेट होती। बट चैट जीपीटी में जब हम कुछ डालते हैं तो ये कोहेरेंट चीज जनरेट करता है, ऐसी चीज जिसका कुछ सेंस बन रहा होता है। जब हम चैट जीपीटी के अंदर डाल रहे होते हैं एज कम्पेयर टू जब हम कीबोर्ड में डालते हैं, तो इसमें तो कुछ गार्बेज जनरेट हो रहा होता है, बट इसमें कोहेरेंट इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही होती है, राइट। सो इससे पहले प्रेडिक्शंस हो रहे थे और क्लासिफिकेशंस हो रही थी, बट अब यहाँ पे जनरेट हो रही हैं चीजें। अगर हम बात करें, इट्स कॉल्ड जीपीटी बिकॉज इट्स अ जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। अगर इसके हम टेक्निकल उसमें जाएं तो जीपीटी एंड चैट जीपीटी जो है बेस्ड ऑन दिस टेक्नोलॉजी, जीपीटी जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर्स एंड इट्स अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM। तो ये दो कोर टेक्नोलॉजीज हैं जो यूज होती हैं when we interact with ChatGPT. Large language models काम करते हैं GPT के साथ में and it generates coherent text based on the text that you have given. इसका क्या मतलब है? अगर आप जैसे ChatGPT, अगर आप GPT, मैं ChatGPT नहीं बोल रहा, सिर्फ GPT LLM के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप उसके अंदर लिखते हो a quick brown fox, अगर आप सिर्फ इतना सा टेक्स्ट लिखते हो, अभी चैट जीपीटी के अंदर लिखोगे तो ऑफ कोर्स इसका रिस्पांस वो नहीं आएगा जो मैं बोल रहा हूँ, बट आई कैन डेमोन्स्ट्रेट दिस टू यू कि इफ यू राइट अ क्विक ब्राउन फॉक्स, तो ये क्या करेगा,
इट विल कंटिन्यू राइटिंग के जंप होता है या जंप्स होता है पता नहीं, जंप ओवर अ लेजी डॉग, क्योंकि ये जीपीटी एलएलएम क्या करता है, टेक्स्ट को एक्सपैंड करता है ना कोहेरेंट वे। समझ में आ रहा है ये? कुछ कॉन्टेक्स्ट समझ में आया ये कि अगर कोई ब्राउन फॉक्स लिखा तो एक कॉमन एक सेंटेंस है ये जिसके अंदर कीबोर्ड के सारे कीज यूज होते हैं जब ये और सेंटेंस लिख रहे होते हैं। तो एक बार जरा चैट बॉक्स के अंदर मेरे को यस नो लिख के बताओ कि समझ में आ रहा है कि इसने जनरेट किया। अगर मैं बोलता हूँ क्विक ब्राउन फॉक्स तो इट विल जनरेट दी टेक्स्ट जो इसके बाद आना चाहिए। मैं आपको एक बार अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ ये कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये देखो, हाँ ब्राउजर दिख रहा है मेरा। मैंने यहाँ पे लिखा अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स, और अगर मैं इसको सबमिट करता हूं तो इट विल कंप्लीट ओवर द लेजी डॉग। अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, और फिर द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्ड ओवर द लेजी डॉग। इसने एक और चीज लिखी बिकॉज इट इज कंटिन्यूइंग दिस सेंटेंस इसके आगे लिख रहा है। तो यानी कि इसको टेक्स्ट दिया और इसने जीपीटी ने इसको एक्सपैंड किया। आप सोच रहे कि ये क्या इंटरफेस दिखाई दे रहा है, तो अभी इसके बारे में भी समझाऊंगा कि ये क्या चीज है। बट द पॉइंट बीइंग कि इसको हम टेक्स्ट देते हैं और उसको ये एक्सपैंड करता है। आई होप कि ये वाली चीज क्लियर है कि टेक्स्ट देते हैं उसको ये एक्सपैंड करता है। बट इट्स नॉट एज सिंपल एज आवर कीबोर्ड। जो कीबोर्ड के अंदर हम कर रहे होते हैं ना ऑटो कंप्लीट और ऑटो फिल, वो सब उससे उतना सिंपल नहीं है ये। इट्स वे मोर एडवांस देन दैट। लेट मी जस्ट शेयर माय आईपैड वाला स्क्रीन। मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ इसमें दिख रही है। For some reason, अच्छा ये बताओ जरा चैट बॉक्स के अंदर चैट जीपीटी प्लस किस किसने ले रखा है अभी तक? यस लिखना अगर लिया हुआ तो जो लोग यस लिख रहे हैं उन्हीं को सच में चैट जीपीटी उन्होंने यूज किया है, बाकी सब ने जीपीटी 3.5 यूज किया है। बट एनीवे लेट्स कम बैक टू द टॉपिक कि यहाँ पे हमने बात करी कि जीपीटी के अंदर क्या हुआ कि इसने टेक्स्ट को जनरेट किया बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन दैट इट हैज। देखो ये ना ट्रेंड है विद ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन व्हिच इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। ये ट्रेंड है किस डेटा के ऊपर? जैसे अ क्विक ब्राउन फॉक्स लिखा तो इसने जंप्स ओवर अ लेजी डॉग कंप्लीट किया इसको बिकॉज इट इज ट्रेन्ड ऑन ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज पब्लिकली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर तो कुछ भी मिलते हैं, उसका कुछ भी ढूंढते हैं उसका आंसर मिल ही जाता है, राइट? सो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है उसके ऊपर ये जो उसका डेटा है वो ट्रेंड है, ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज पब्लिकली अवेलेबल। अब मे बी ये एग्जैक्टली ट्रू नहीं होगा कि ऑल द इंफॉर्मेशन, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन सिंपल टर्म्स कि भाई सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन, उसके ऊपर इसको ट्रेन किया गया। देखो जहां तक बात थी पहले जीपीटी टेक्स्ट को एक्सपैंड करता था, तब तक तो कुछ ऐसे कुछ मजेदार चीज कुछ खास हुई नहीं थी इसके अंदर। अगर सिर्फ टेक्स्ट को एक्सपैंड कर रहा है, हम उसको जो बोल रहे हैं उसको एक्सपैंड कर रहा है, तब तक ये ओपन एआई ने बहुत पहले निकाल दिया था इसको। जीपीटी 1 था, 2 था, इसके अलावा बहुत सारे दूसरे मॉडल्स भी थे। लेकिन टेक्स्ट को एक्सपैंड करने तक तो ओके था, लेकिन जब कमाल हुआ वो तब हुआ जब ये टेक्स्ट को एक्सपैंड कर पा रहा है और साथ में इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो कर रहा है, तो बेसिकली अब अगर आप नोटिस करोगे कि चैट जीपीटी क्या कर रहा है कि हम उसको कुछ टेक्स्ट देते हैं, उसके लिए ये इसको एक्सपैंड तो करता ही था, साथ में इट इज ऑल्सो इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग वे के अंदर ये एक्सपैंड कर रहा है टेक्स्ट को। ये किसी ने नोटिस कर रहा है कि आप इसको इंस्ट्रक्शन देते हो और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, राइट?
अगर मैं इसको बोलूं कि डोंट कंप्लीट दिस सेंटेंस, जस्ट गिव मी द ओरिजिनेशन ऑफ दिस सेंटेंस, और उसके बाद लिखूं अ क्विक ब्राउन फॉक्स, राइट? तो व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? मैंने इसको यहां पे एक इंस्ट्रक्शन दिया और यहां पे एक सेंटेंस दिया. डू यू वांट टू सी दिस कि क्या होता है अगर मैं ये इसको इंस्ट्रक्शन देता हूं तो ये क्या करेगा? दिखाऊं लाइव so that you can understand it a little bit better. कि जब मैंने यहाँ पे लिखा था a quick brown fox jumps over the lazy dog, so अगर मैं लिखता हूँ इसको ये बोलता हूँ don't complete this sentence, the sentence below, just give its origin. सबमिट करके देखते हैं क्या होता है. सो आपने यहाँ पे देखा कि मैंने इसको बोला डोंट कंप्लीट द सेंटेंस बिलो, जस्ट गिव इट्स ओरिजिन, बट इसने इसको कंप्लीट भी किया और ओरिजिन भी दिया, राइट? बिकॉज इट्स यूजिंग टेक्स्ट दा विंची मॉडल, नॉट द चैट जीपीटी मॉडल दैट वी हैव यूज्ड राइट नाउ, राइट? तो अब इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा. बट हुआ क्या, इसने इंस्ट्रक्शन ओरिजिन के बारे में इंफॉर्मेशन देने का इंस्ट्रक्शन इसने फॉलो किया, इसने मेरे को दिया, क्योंकि मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई इसके ओरिजिन को बताने के ओरिजिन क्या है इसका. तो इट फॉलोड द इंस्ट्रक्शन and it gave me the origin of the sentence, right? and ये वाली चीज जो अभी यहाँ पे हुई है, इसको आपको बिल्कुल याद रखना है. इसको अभी साथ में साइड में रखो अपने पास में. just hold this thought कि इसको मैंने ये बोला don't complete the sentence below, it still completed the sentence below and then gave its origin. दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर? are you guys able to read this? Great. So let me switch back to my other screen. No, it's not paid version. I'll explain to what it is. Vedant. Let me just ये अभी थोड़ा सा ये switch करने में थोड़ा सा lag आता है, but bear with me. So हमको ये समझ में आया कि it is following instructions to an extent, right? और उसके बाद में ये text भी generate कर रहा है while following instructions. अच्छा, मैंने बोला कि it will follow your instructions, it will not follow your intentions. ये आपके instructions को follow करेगा, आपके intention को follow नहीं करेगा. इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा, इंटेंशन को फॉलो नहीं करेगा. क्या फर्क है दोनों में? इट विल फिगर आउट व्हाट योर इंटेंट इज, बट आपके इंटेंशन को फॉलो नहीं करेगा. इट विल ओनली फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस. आप जो उसको इंस्ट्रक्ट करोगे कि ये करना है, ये उस चीज को फॉलो करेगा, बट आपके इंटेंशन यानी कि जो आप सोच रहे हो कि इसको ये करना चाहिए, उसको फॉलो नहीं करेगा. यानी कि अगर आप इसको बोलोगे ना कि write a poem about क्या बोलें, कुछ एग्जांपल दो. write a poem about rains, right? आपने ये इंस्ट्रक्शन दिया इसको, right? आपने क्या दिया इसको इंस्ट्रक्शन? आपने इसको बोला write a poem about rains. तो पहली बात तो it is capable of generating text from a huge data set. So it is going to generate a very nice poem on rains, right? But हो सकता है कि वो रेन के बारे में जो पोएम है वो एक सैड पोएम हो. सैड पोएम मतलब जिसका क्या कहते हैं, जिसका एक सैड इमोशन हो, for the lack of words. सैड पोएम दे देगा मेरे को, ये हो सकता है. क्यों? क्योंकि मे बी स्टैटिस्टिकली ये देखेगा कि जब रेन के बारे में पोएम बोल रहे हैं लोग तो वो सैड की तरफ जा रही है,
राइट? तो मे बी ये हमको एक सैड पोएम दे देगा. बट अगर मैं इसको बोलूंगा राइट अ हैप्पी पोएम अबाउट रेन्स, तो मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दिया है. मैं पहले सोच रहा था कि एक बढ़िया एक खुशनुमा एक पोएम निकल के आएगी इसके अंदर से, बट नहीं, उसने मेरे को एक सैड पोएम दे दी. तो मैंने मेरा इंटेंशन उसने फॉलो नहीं किया. बट अगर मैं उसको इंस्ट्रक्शन दूंगा कि राइट अ हैप्पी पोएम अबाउट रेन्स, तो फिर वो मेरे को एक हैप्पी पोएम देगा रेन के बारे में. ये डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? This is the same when communicating with humans. मतलब मेरे को नहीं लगता है कि मतलब जब से ChatGPT को यूज करना शुरू किया है तब से it also improves your communication with other humans also. क्योंकि हमको ये समझ में आता है कि ChatGPT ने जो जनरेट किया है उसको मैंने वो जनरेट करने के लिए जितना बोला था उतना ही उसने जनरेट किया. बट देखो फर्क क्या है कि जब हम ह्यूमन से बात कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ वर्ड्स को नहीं यूज कर रहे होते, हमारी टोन होती है, हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, बहुत सारी और भी डिफरेंट चीजें होती हैं जो कन्वे हो रही होती है व्हेन यू आर टॉकिंग टू अ ह्यूमन. आपने नोटिस किया होगा जब आप व्हाट्सएप के ऊपर किसी से बात कर रहे होते हो तो आप कुछ बोल रहे हो लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए उसका मीनिंग कुछ और समझना इज वेरी इजी. मतलब हो सकता है कि मिसकम्युनिकेशन हो व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग ऑन व्हाट्सएप, क्योंकि फीलिंग्स नहीं समझ में आती कि वो क्या लिखा है. उसमें लिखा है कि कब तक आएगा, अगर आपने मैसेज किया किसी को तो कब तक आएगा पूछ रहे हो, और हो सकता है कि वो पढ़े कब तक आएगा, तो वो नहीं पता क्योंकि वो टोन नहीं उसमें हम टेक्स्ट के अंदर डाल पा रहे. तो वैसे ही जब हम चैट जीपीटी के अंदर भी कुछ डालते हैं तो उसके अंदर हम सिर्फ वर्ड्स ही यूज कर सकते हैं कन्वे करने के लिए कि हम क्या चाहते हैं. ओके, एंड उसके बेसिस के ऊपर वो हमको रिस्पॉन्स देता है. तो व्हेनेवर वी आर टेलिंग चैट जीपीटी टू डू समथिंग, इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक कि ये चाहिए मेरे को, राइट? और मजे की बात ये कि आप उससे पूछ भी सकते हो कि मुझे नहीं पता कि क्या चाहिए मुझे, तो कुछ सजेस्ट करके कुछ क्वेश्चंस पूछ कि मुझे क्या चाहिए ताकि मैं जवाब दे सकूं. बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग. पहले लेट्स टॉक अबाउट दिस. तो समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? आर यू एबल टू गेट दिस गाइस? यस? ग्रेट. सो मैं अपनी स्क्रीन जरा फिर से शेयर करता हूं. देखो आज ना ये सारे डॉट्स तब कनेक्ट होंगे जब कॉन्वर्सेशन कंप्लीट होगी. हो सकता है कॉन्वर्सेशन के बीच में I'll leave some open threads, लेकिन पूरा समझ में तब आएगा जब कॉन्वर्सेशन कंप्लीट होगी. तो अगर उसके बीच में कुछ समझ में नहीं भी आ रहा तो कोई बात नहीं, कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ. तो हमको ये समझ में आया कि चैट जीपीटी जो है ऐसा बढ़िया टूल है जो टेक्स्ट जनरेट करता है. सारे इंटरनेट से सारा कंटेंट के बारे में इसको नॉलेज है, टेक्स्ट जनरेट करता है और साथ में हमारे इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो करता है. हम जो उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको फॉलो करता है. ये समझ में आ रहा है ना? इतना सबको समझ में आ गया कि इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है और टेक्स्ट जनरेट करता है. तो इंस्ट्रक्शन तो ये भी हुआ कि शर्मा जी को बोलो कि लास्ट वीक का अपडेट दे. इंस्ट्रक्शन तो ये भी है. हमको क्या पता चैट जीपीटी के बारे में कि चैट जीपीटी कैन जनरेट टेक्स्ट एंड फॉलो इंस्ट्रक्शंस. मैं अगर चैट जीपीटी को बोल रहा हूँ कि शर्मा जी को बोलो कि लास्ट वीक का अपडेट दे, तो इट शुड जनरेट सम टेक्स्ट. नाउ इट इज पॉसिबल कि if you tell this to chat GPT, it might generate some email. क्या आप ये ईमेल भेज सकते हो शर्मा जी को, या कुछ मैसेज जनरेट कर दे जो आप शर्मा जी को भेज सकते हो, या फिर वो बोलेगा as an AI model I don't have the ability to tell शर्मा जी or whatever, right? क्योंकि आपने जब उसको बोला कि शर्मा जी को बोलो कि लास्ट वीक का अपडेट दे, तो उसको नहीं पता कि वो उसको क्या करना है, राइट? अब इस थॉट को ना यहीं पे रोक दो. अब इसको जस्ट कीप दिस थॉट विद यू. इसको हम दोबारा से रिविजिट करेंगे, लेकिन इसको समझने के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि चैट जीपीटी है क्या.
अभी तो हमको ये समझ में आया कि चैट जीपीटी जो है क्या करता है, चैट जीपीटी है क्या, ये समझते हैं। जैसे कि मैंने पहले बात करी कि जीपीटी, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये 2 टेक्नोलॉजीज है जिसके ऊपर ये चैट जीपीटी काम करता है, राइट? सो ये 2 टेक्नोलॉजीज है जिसके ऊपर ये काम करता है। देखो, ओपन एआई ने एक बहुत बढ़िया मॉडल ट्रेन किया जिसके पास में सारी वो पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन थी जो वो कैप्चर कर पाए। उन्होंने मॉडल क्रिएट किया। उन्होंने सोचा कि अब ये मॉडल जो एआई हमने बना तो दिया, अब इसको जनता को यूज कैसे करवाएं। ये मॉडल तो हमने बना दिया, अब जनता को यूज कैसे करवाएं, क्योंकि मॉडल तो लोग पहले भी बना रहे थे। पहले लोग क्या मॉडल बना रहे थे? पहले लोग मॉडल बना रहे थे कि कंप्यूटर विजन का मॉडल बना रहे थे, कि अगर फेस रिकॉग्निशन का मॉडल बना रहे थे, क्लासिफिकेशन के मॉडल बना रहे थे, प्रेडिक्शन के मॉडल्स बना रहे थे। तो ओपन एआई ने कहा कि हम एक लार्जर ऑडियंस को कैसे यूज करवाएं अपने मॉडल को। तो उन्होंने सोचा कि द बेस्ट वे इन विच द पब्लिक कैन यूज दिस मॉडल, तो क्या होगा, वो हम एक काम करते हैं, चैट का इंटरफेस बनाते हैं, क्योंकि चैटिंग सबको करनी आती है, ईमेल्स भेजने आते हैं लोगों को चैटिंग करनी आती है, तो चैट बेस्ड कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने मॉडल क्रिएट किया हुआ था GPT-3, इस GPT-3 के बेसिस के ऊपर इन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया, चैट जीपीटी। सो चैट जीपीटी इज नॉट द एआई जिसकी हम बात करें, चैट जीपीटी इज द फ्रंट एंड, चैट जीपीटी इज द फाइनल प्रोडक्ट जो कस्टमर तक पहुंचा है। वो एआई मॉडल वो ओरिजिनल जो एआई मॉडल उन्होंने बनाया है वो नहीं है, उसका इंटरफेस नहीं है। चैट जीपीटी जस्ट एन इंटरफेस जहां पे आप और मेरे जैसे लोग जो हैं एक वेबसाइट के ऊपर जाएं और इस मॉडल के साथ में चैट कर सकें, GPT-3 के साथ में। GPT-3 जो है वो असली मॉडल था जो बिहाइंड द सीन्स काम कर रहा था, आपके मैसेजेस को प्रोसेस करके, आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके चैट जीपीटी के ऊपर आपको रिजल्ट का आउटपुट देने के लिए। उसके बाद GPT 3.5 टर्बो आया और अब इनका सबसे केपेबल मॉडल GPT-4 आया, और अभी रिसेंटली ही इसके अंदर GPT-3 और GPT 3.5 टर्बो, इनके अंदर फंक्शन कॉलिंग की कैपेबिलिटी आई। तो पिछले 7 महीने में ही ये इतना इवॉल्व कर चुका है, जितना यूजुअली टेक्नोलॉजी सालों में इवॉल्व होती है उतना ही पिछले 7 महीनों के अंदर इवॉल्व कर चुका है। बट द पॉइंट बीइंग कि चैट जीपीटी इज नॉट द एआई जिसको हम यूज करने की बात करते हैं। यार बहुत हो गया, मैसेज जनरेट कर लिया, ठीक है, गुड है, वेरी नाइस, टेक्स्ट जनरेट कर लिया, ब्लॉग जनरेट कर लिया, आर्टिकल जनरेट कर लिया, जनरेशन इज फाइन, ठीक है, मतलब कम्युनिकेट कैसे करना है किसी के साथ में, कोई अपना कोई किसी क्लाइंट को सेल्स का मेल लिखना है, अपने कोई एड की कॉपी लिखनी है, कुछ भी करना, दैट इज वन थिंग व्हिच वी ऑल यूजुअली नो अबाउट। बट हमको एआई की पावर अभी तक इसलिए समझ में नहीं आई बिकॉज ये जो बिहाइंड द सीन्स ये जो मॉडल्स काम कर रहे हैं, GPT 3.5, अब मैं इसको हर बार ना GPT 3.5 टर्बो बोलने की जगह I'll just say 3.5, okay? Instead of saying GPT 3.5 turbo again and again, I'll just say 3.5. And GPT-4, हमको ये नहीं पता कि ये चीजें भी हमारे पास में अवेलेबल है। जब मैं आपको ये स्क्रीन दिखा रहा था अपने कंप्यूटर की, तो ये बेसिकली ओपन एआई का प्लेग्राउंड, इसको ये लोग कहते हैं प्लेग्राउंड। याद है 2017-18 में भी जब वर्कशॉप होती थी, तो वर्कशॉप में जब हम गूगल ड्राइव के बारे में सीख रहे होते थे तो हम अपने फोल्डर का नाम प्लेग्राउंड रखते थे। तो ये है 2017-18 वाले लोग जो है। बट एनीवे, वी यूज्ड टू कीप द फोल्डर्स नेम एज प्लेग्राउंड इसके अंदर, इवन इन 2019। सो प्लेग्राउंड जो है इसका नाम रखते थे, अभी इसका भी नाम प्लेग्राउंड है। यहाँ पे क्या है कि आप ओपन एआई ने जितने डिफरेंट मॉडल्स बनाए हुए हैं, आप उनसे सीधा बात कर सकते हो इंस्टेड ऑफ चैट जीपीटी का इंटरफेस। यानी कि चैट जीपीटी के अंदर जो है क्या बोला वो इंस्ट्रक्शन कि भाई यू आर अ फ्रेंडली एआई असिस्टेंट, यू आर ऑलवेज पोलाइट, यू आंसर टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटी, और ऐसा एक प्रोडक्ट बना के आपको और मेरे को दे दिया। बट यहाँ पे जो चीज हम एक्सेस कर रहे हैं ना, ये एकदम रॉ है, रॉ। इसको चैट जीपीटी को जो चीज बोली गई है ओपन एआई के द्वारा, ताकि वो आपसे
इजीली कम्युनिकेट कर पाए, इसको वो चीजें नहीं बोलेंगे. दिस इज रॉ, बिल्कुल रॉ मॉडल्स जो हैं, ये बिल्कुल रॉ मॉडल्स हैं. इनके पास देखो, इन्होंने बहुत सारे डिफरेंट मॉडल्स बनाए हुए हैं यहाँ पे. टेक्स्ट दा विंची, जिसकी स्ट्रेंथ्स ये है कॉम्प्लेक्स इंटेंट को समझना. अब इंटेंशन और इंटेंट ये जो समझ रहा है, इसमें डिफरेंट चीजें हैं. ये एआई के टर्म्स में इंटेंट इज समथिंग एल्स. इंटेंशन जो हम बात कर रहे थे वो कुछ और चीज थी. कॉज एंड इफेक्ट को समझना, क्रिएटिव जनरेशन करना, सर्च करना, समराइजेशन करना ऑडियंस के लिए. ये क्यूरी है, बैबेज है, एडा है. इनके सबके अलग अलग स्ट्रेंथ्स हैं और सबके अलग अलग प्राइसिंग है और सबके अलग अलग साइज. अगर आप नोटिस करो, एडा का छोटा सा साइज, इसका थोड़ा बड़ा, इसका थोड़ा बड़ा, इसका बहुत बड़ा, राइट. अच्छा, अब मैंने तो ये इन मॉडल्स की बात करी नहीं. मैं तो बात कर रहा था जीपीटी 3.5 टर्बो, यानी कि 3.5 वो जीपीटी 4 की. तो वो जो है वो चैट मॉडल्स हैं. जीपीटी 3.5 टर्बो, अब एक न्यू जीपीटी आया है, जीपीटी 3.5 टर्बो 16,000 एंड जीपीटी 4. ये ना रॉ मॉडल्स है, रॉ मॉडल्स. ये वो चीजें नहीं है जो चैट जीपीटी ने अपने इंटरफेस के अंदर डाली हुई है कि भाई यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट, राइट. ये रॉ मॉडल है. इसको मैं खुद बता सकता हूं कि ये क्या है. इसको मैं वो बना सकता हूं जो मैं इसको बनाना चाहूं. नॉट लाइक जैसे आप चैट जीपीटी के अंदर करते हो कि एक्ट एज, लेट्स से बोल रहा है कि एक्ट एज समवन, क्योंकि वो एक्ट तो कर रहा होता है लेकिन वो असली में वो उस चीज को नहीं कर रहा होता जो आप उसको जो सोच रहे हो आपके वो कर रहा है, क्योंकि वो अपने एक सिस्टम के इंस्ट्रक्शन को भी फॉलो कर रहा है साथ में. तो जैसे अगर मैं इसको बोलता हूँ यू नेवर कंप्लीट इनकम्प्लीट सेंटेंसेस. अब ये दूसरे एआई को बोलता हूँ कि इसको सही कर दे भाई. इट्स इंपॉर्टेंट टू ऑलवेज फिनिश योर सेंटेंसेस. नहीं, इसने अच्छा नहीं किया अभी. रुको. You should never complete any sentence that is incomplete. Instead, say something witty so that the user completes the sentence themselves. अब मैं इसको बोलता हूं जरा. A quick brown fox jumps over the. I bet you can guess what comes next. See? Do you see the difference? जो पुराने मॉडल्स थे, दा विंची, क्यूरी, बैबेज, उनको भी मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था बट उन्होंने फॉलो नहीं किया. बट यहाँ पे इस मॉडल को मैंने इंस्ट्रक्शन क्या दिया कि you should never complete any sentence that is incomplete. Instead, say something witty so that the user completes the sentence themselves. अब जब मैंने इसको क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स बोला तो उसने बोला ओवर द, एंड आई बेट यू कैन गेस व्हाट कम्स नेक्स्ट. सो इट डिड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस जब मैंने इसको सिस्टम मैसेज के अंदर इंस्ट्रक्शन दिया. तो कहने का मतलब ये है कि चैट जीपीटी, ये चीज समझ में आ रही है ना कि चैट जीपीटी इज द प्रोडक्ट जो हमको एक मास यूज के लिए बना हुआ है, लेकिन असली में इनकी ये जो मॉडल्स हैं ये डिफरेंट चीजें हैं. मॉडल्स अलग हैं और उन मॉडल्स के ऊपर एक प्रोडक्ट बना हुआ है जिसको आप में सब लोग यूज कर सकें. डिफरेंस समझ में आया? वो जो चैट जीपीटी हम मॉडल यूज कर रहे हैं वो कुछ प्रीफिट कंडीशंस के साथ में बना हुआ है. आप उससे बढ़िया मजे कर रहे हो, ईमेल लिख रहे हो, एड कॉपी लिख रहे हो, आर्टिकल लिख रहे हो, वेल एंड गुड, बट देयर इज मोर टू इट, राइट. देखो, जब हम बात करते हैं मॉडल्स जो 3.5 और GPT-4 हमको मिला हुआ है, लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग के लिए यूज करते हैं, करेक्ट राहुल? सो हम जितनी भी चीजों के लिए यूज करते हैं दैट इज वन थिंग, बट इसका एक बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट एस्पेक्ट है जो हम आज डिस्कवर करेंगे कि क्या है. देखो, ओपन एआई ने क्या बोला कि देखो जी, हमने ना मॉडल बनाया 3.5 और GPT-4. जो हमने मॉडल बनाया, हमने आप लोगों को उसका एक प्रोडक्ट भी बना के दिखाया, चैट जीपीटी. ध्यान से समझो, मतलब हैव दिस एक इंटेंशन मेरे को समझने का ओपनली कि ओपन एआई ने लोगों को बोला कि हमने ना ये 2 मॉडल्स बनाए. तो उन्होंने क्या किया, एज अ कंपनी दे प्रोड्यूस्ड 2 मॉडल्स, और उसके बाद उन्होंने बोला कि ये देखो इन मॉडल से ये चैट जीपीटी बना के हमने दिखाया. ओके, इसके ऊपर यूजर आके चैट कर सकता है एंड हिस्ट्री वगैरह यहाँ पे स्टोर हो जाएगी उनकी कि उन्होंने क्या चैट करी थी. वहां पे एडिट, कॉपी, रीजनरेट, इन सब के ऑप्शंस होंगे. उन्होंने एक प्रोडक्ट बना के दिखाया, लेकिन दिस इज नॉट देयर
कोर बिजनेस उनका ये नहीं है कि चैट जीपीटी को चलाए बढ़िया, उनका रियल सोर्स ऑफ इनकम ये है, मतलब डोंट कोट मी ऑन दिस, बट उनका असली गेम यहां पे है, राइट? ओपन एआई ने डेवलपर्स को बोला कि जैसे हमने अपना चैट जीपीटी बनाया वैसे ये लो हमारे मॉडल्स और आपको जो बनाना है बनाओ, ये लो हमारे मॉडल्स, आप हमारे मॉडल्स लो और आपको जो बनाना है वो बनाओ। अच्छा, इसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि जैसे हम लोग बात करते हैं इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, हमारे पास सारी लैंग्वेजेस होती हैं कम्युनिकेट करने के लिए, वैसे ही जब एक सॉफ्टवेयर को दूसरे सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करना होता है तो इसकी जो लैंग्वेज होती है वो होती है एपीआई। ओके, एपीआई इज द लैंग्वेज जिससे कि एक सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करता है। जैसे कि एक सॉफ्टवेयर है गूगल फॉर्म, एक सॉफ्टवेयर है गूगल शीट, तो जब आपने दोनों को लिंक करा हुआ हो कि गूगल फॉर्म पे जब भी कोई न्यू सबमिशन आता है, न्यू सबमिशन जब भी आया है इसके ऊपर, तो ये गूगल शीट को इस भाषा में, इसकी एपीआई की भाषा में बताता है कि ये नया सबमिशन आया है, इसको रोज के अंदर और कॉलम्स के अंदर अरेंज कर दें। ये चीज समझ में आ रही है कि प्रोग्राम आपस में कम्युनिकेट यूजिंग दिस लैंग्वेज व्हिच इज डिक्लेयर्ड बाय द डेवलपर जिसने भी ये प्रोग्राम बनाया है, ये सॉफ्टवेयर बनाया है। Is this something that you are able to comprehend? कि अगर जिस व्यक्ति ने गूगल फॉर्म बनाया, लेट्स से उसने बोला कि अगर आप google.com/form पे जाके ये इंफॉर्मेशन भेजोगे तो मैं X चीज करूंगा। इसने भी ये बताया कि अगर आप google.com/add-info पे जाओगे और साथ में जो भी सबमिशन आई थी वो भेजोगे तो मैं इसको अपनी रोज और कॉलम्स में डाल दूंगा। क्या सिर्फ एक दो लोग को समझ में आ रहा है? Is this thing making any sense to all of you? समझ में नहीं आ रहा तो बोल दो नहीं आ रहा, मैं दूसरे शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। एक दो लोगों ने बोला कि नहीं आ रहा तो आई जस्ट एक बार फिर से एक बार बताता हूँ कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। So basically जब एक सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर से हम उसको कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं, राइट, तो उसके लिए हमको एपीआई की जरूरत पड़ती है। एपीआई वो चीज होती है जो कि डेवलपर ने डिफाइन करी हुई होती है कि भाई ये अगर मेरी सॉफ्टवेयर के अंदर तुमको ये वाला एक्शन लेना है तो तुमको ये वाले एंड पॉइंट के ऊपर यानी इस वाली यूआरएल के ऊपर ये इंफॉर्मेशन भेजनी होगी तो मैं अपनी शीट के ऊपर ये करूंगा। तो उन्होंने ऐसे डॉक्यूमेंटेशन बनाई हुई होती है। तो वैसे ही ओपन एआई क्या करता है, ओपन एआई ने अपने मॉडल्स जो कि उनका ये दो मॉडल्स हैं, GPT-4 एंड GPT-3.5, इन दोनों मॉडल्स की एपीआई दी हुई है। इन दोनों मॉडल्स की एपीआई हमको दी हुई है। ओके, अच्छा, एपीआई अगर दी हुई है तो इसका फिर हम क्या करें? एपीआई दी हुई है तो गुड है, डेवलपर्स के लिए काम आती होगी, हम क्या करें? देखो, अब जरा रिविजिट करते हैं अपनी पुरानी प्रॉब्लम को जहां पे हम चैट जीपीटी को बोल रहे हैं कि शर्मा जी को बोलो कि लास्ट वीक का अपडेट दें, राइट? अब यहाँ पे जब हम एपीआई समझ गए और ये समझ गए कि चैट जीपीटी इज एक्चुअली अ प्रोडक्ट जो कि ओपन एआई ने बनाया है, बट जो मॉडल्स हैं वो किसी के लिए भी अवेलेबल है यूज करने के लिए, तो अब अगर मेरे पास में ये इंफॉर्मेशन है तो मैं मॉडल को ये कैपेबिलिटी दे सकता हूँ, मैं मॉडल को ये इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ कि भाई जब भी मैं ऐसा कुछ बोलूं कि शर्मा जी को कुछ बोलना है तो क्या करना, मेरे को रिस्पॉन्ड करना आप
कि एपीआई से कनेक्ट करवा दो। एपीआई किससे कनेक्ट करवा दो? व्हाट्सएप की एपीआई से कनेक्ट कर दो, राइट? एपीआई को, ये जो शर्मा जी को बोल दो कि लास्ट वीक का अपडेट दें, तो जीपीटी को बोलो कि व्हाट्सएप की एपीआई के ऊपर मैसेज भेजे। समझ में आ रहा है क्या ये चीज? कि जब शर्मा जी को बोलो कि लास्ट वीक का अपडेट दें, तो एपीआई से वो व्हाट्सएप के ऊपर इंफॉर्मेशन भेजने का कैपेबिलिटी आती है जीपीटी के मॉडल से। एक सेकंड रुको। अच्छा, ओके। सो ये बताओ कि अब तक क्या समझ में आया? आई एम जस्ट लेटिंग यू अनम्यूट योर माइक्स। अभी तक क्या समझ में आया जो सारी हमने बात करी? तो निर्देश में ये समझ आया कि एक्चुअली हम सोच रहे थे कि चैट जीपीटी ही कुछ है इस काम, तो समझ ये आया कि वो तो सिर्फ एक टेस्टर है कि उसके जो नीचे जो कोर है, जो GPT 3 एंड 3.5 टर्बो एंड GPT 4, तो मेन प्रोडक्ट तो वो है। गेम तो वहां बनानी है और उसको अपने सिस्टम में, जैसे एग्जाम्पल कुछ हमें अपने सिस्टम से ऐसा कुछ क्वेश्चन पुटअप हो, हमारे सिस्टम को किसी ने मांगा कि अकाउंट्स की स्टेटमेंट भेज दो, तो हमारे सिस्टम से उसकी अकाउंट के